ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کی ہدایت پر شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے اقدامات جاری۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی احمد سلیم چشتی کی زیر نگرانی شہر کی خوبصورتی کے لیے مختلف ترقیاتی اور تزئینی کام تیزی سے جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں اہم شاہراہوں، چوکوں، فٹ پاتھوں اور عوامی مقامات کی بہتری، صفائی ستھرائی، گرین بیلٹس کی بحالی، پودوں کی شجرکاری اور رنگ و روگن کے کام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی احمد سلیم چشتی نے متعلقہ افسران و عملے کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ بیوٹیفیکیشن کے تمام منصوبے مقررہ معیار اور بر وقت مکمل کیے جائیں تاکہ شہریوں کو صاف، سرسبز اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ڈسکا سپیریئر کالج کا چھٹا کانویکیشن پروگرام منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزیر بلدیات اور سماجی سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں شہباز نقوی کی یہ رپورٹ۔ ڈسکا سپیریئر کالج کا چھٹا کانویکیشن پروگرام مقامی میرج ہال میں منعقد ہوا، جس میں بی ایس اور بی بی اے کی ڈگریاں تقسیم کی گئیں اور پوزیشن ہولڈرز طالبات کو ایوارڈز، میڈلز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق سمیت سیاسی و سماجی تعلیمی شخصیات اور طالبات کے والدین نے خصوصی شرکت کی اور کامیاب ہونے والی تمام طالبات کو ڈگریاں دیتے ہوئے ان کے آنے والے کامیاب کل کے لیے مکمل حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ڈائریکٹرز اشفاق حیدر چیمہ، غلام مصطفیٰ گل، ضیاء اللہ ناگرہ اور پرنسپل محمد عرفان نے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ یہ ساری میرے اللہ کی جو ہے وہ بلیسنگ ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اتنا خوبصورت جو ہے وہ فنکشن اللہ کی ذات نے جو ہے وہ آرگنائز کروایا، اور یہ ہمارا 6 کنووکیشن ہے۔ میرا نام اشفاق حیدر چیمہ ہے اور میں ڈائریکٹر ہوں بیسیکلی سپیریئر گروپ آف کالجز کا، اور یہ ہمارا 6 جو ہے وہ کنووکیشن ہے، اور آلموسٹ جو ہے وہ 1300 کے قریب جو ہے وہ بچہ ابھی تک جو ہے یہاں سے جو ہے وہ مختلف قسم کی اسناد لے کے جو ہے وہ مارکیٹ میں نکل چکا ہے، اور ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ اور ڈسکا میں سپیریئر پہلا انسٹیٹیوشن تھا جس نے 2016 میں جو ہے وہ بی ایس کو انٹروڈیوس کروایا، اور آج 2025 ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 900 سے زیادہ جو ہے وہ ایکسکلوسیولی بیٹیوں کا فنکشن ہے، اور جو بیٹیوں کا کیمپس ہے جو ابھی بھی پڑھ رہی۔ تو میری اللہ سے جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں نظر بد سے بھی بچائے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیں اسی طرح جو ہے وہ بچوں کی اور والدین کی خدمت جو ہے وہ کرنے کا موقع دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، آئی ایم محمد عرفان، پرنسپل سپیریئر کالج ڈسکا، اور آج کا دن ہماری 6 کانووکیشن ہو رہی ہے سپیریئر کالج ڈسکا۔ ڈسکا میں ایک ہسٹری کریٹ کی ہے کہ 2000 سے زیادہ بچہ ہے جو اب تک بی ایس گریجویٹ ہو چکا ہے، اور ڈسکا کے مختلف انسٹیٹیوٹ میں، ہاسپٹلز میں، مختلف جو فیلڈز ہیں اس میں اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اپنی خدمات جو ہم سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑی آنر کا دن ہے کہ آج کے دن میں بچے اپنی ڈگریاں وصول کر رہے ہیں۔ سپیریئر کالج ڈسکا ایک اور سنگ میل جو ہے اس نے عبور کیا ہے، تو جو سفر 2011 سے شروع کیا تھا آج 2025 تک 14 سالوں میں 20,000 سے زیادہ بچے جو ہیں ویسے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، اور 2000 سے زیادہ بی ایس آنرز کی ڈگریز لے کے بچے جا چکے ہیں۔ سپیریئر کالج ڈسکا کے لوگوں کے لیے نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن بھی مل رہی ہے، پریکٹیکلی پریکٹس بھی کروائی جا رہی ہے، کم فیس میں۔ ایسے بچے بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں جو اگر یہاں پہ سپیریئر کالج ڈسکا نہ ہو تو پھر بچوں کو لاہور یا گجرانوالہ جانا پڑے، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ وہاں پڑھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن سپیریئر کالج ڈسکا کی وجہ سے آج بہت سے بچے جو ہیں جو پے نہیں بھی کر سکتے تھے، انہوں نے بھی اپنی ڈگریاں مکمل کر لی ہیں۔ وہ ہمارا بھی فخر ہے، اپنے والدین کا بھی فخر ہے، پاکستان کا بھی فخر ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب کرے، ان کو اس قابل بنائے کہ اپنی زندگیوں میں سے ویلیوز جو ہیں پاکستان کے لیے ویلیوز ایڈ کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ڈائریکٹر اسکول محترم میاں کاشف آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جیسا کہ سپیریئر کا فنکشن تھا، کنونیشن تھا بی ایس کی ڈگری کے لیے، تو سپیریئر صرف نام کا سپیریئر نہیں، واقعی سپیریئر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابیاں دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سپیریئر جو ہے وہ تربیت پہ کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے بہت اچھا لگا۔ اور آج ماشاءاللہ 213 بچوں نے
डिग्री वसूल की। अल्लाह ताला इस पीरियड को भी मजीद कामयाब करे, उन बच्चों को भी कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इधर सुपीरियर कॉलेज में हम लोग आए हुए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त डस्का के लिए मौका है। डस्का में इतना बड़ा कॉन्वोकेशन और इतने ज़्यादा कॉलेजेस माशाल्लाह अब हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, क्वालिटी तालीम दे रहे हैं। और यहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी एजुकेशन और स्टैंडर्ड है यहाँ के कॉलेज का। अस्सलाम वालेकुम, मैं स्पिरिट कॉलेज डस्का की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम आयशा आरिफ है। आज मैं आपसे स्पिरिट का एनवायरनमेंट शेयर करूँगी, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। स्पिरिट कॉलेज डस्का में स्टडी का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। टीचर स्टाफ बहुत ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। इसके साथ साथ आपको फन, स्पोर्ट्स, गेम्स ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है। और स्टडी में जो है ना, मेरे ख्याल से इस एरिया में स्पिरिट कॉलेज डस्का ने अपना एक नाम बनाया है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे कामयाबी हासिल की है और कॉन्वोकेशन के मौका पर अपनी डिग्री हासिल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं वजीहा नूर हूँ, BS इंग्लिश के स्टूडेंट, सुपीरियर कॉलेज के स्टूडेंट। हमारा जो कॉलेज है सुपीरियर कॉलेज, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी स्टडीज़ है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है हमारे कॉलेज का। मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस जो मेरा यहाँ पे दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त था। Assalamu alaikum, this is me Rujak Ali. I am from Spirit College, and I am here to introduce about my college. जैसे कि आपको पता है, मैं इधर कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए आई हूँ। मैं बैच 2021 से 2025 की स्टूडेंट हूँ। मेरा डिपार्टमेंट है BS केमिस्ट्री। स्पिरिट कॉलेज डस्का ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया ताकि हम लोग एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें। बहुत सी फैसिलिटेट्स हमें ऐसे प्रोवाइड की जो कि हम अपने शहर में जाके नहीं थे हासिल कर सकते, लेकिन सुपीरियर ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। सुपीरियर कॉलेज डस्का में सबसे अच्छा कॉलेज है। आप यहाँ पे उस पर एतमाद करके स्टडीज़ के लिहाज से, टीचर्स के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से, हर लिहाज से ये बहुत अच्छा कॉलेज है। ये आप लोग इधर ज़रूर विजिट कीजिए और अपनी ही तसल्ली के लिए इसको ज़रूर आप लोग इसको कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुपीरियर कॉलेज डस्का का छठा सालाना कॉन्वोकेशन फॉर BS स्टूडेंट्स जो है वो जारी है। मैं BS में पास होने वाले जितने भी ग्रेजुएट्स हैं और तालबात हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सुपीरियर कॉलेज की पूरी तंजीम को, असातिज़ा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने आज का ये शानदार प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने आज बच्चों को इनामात भी दिए, मेडल्स भी दिए और डिग्रियाँ भी दे रहे हैं। तो मैं जितने भी बच्चे आज पास आउट हुए हैं उनके फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला अपनी तौर पे इनको आगे फ्यूचर में अच्छे से अच्छा जो है इनको काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुपीरियर कॉलेज डस्का का 6th कन्वोकेशन बड़ी कामयाबी से जारी सारी है और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज हम यहाँ पे इसमें मौजूद हैं। माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम और इतने फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा गैदरिंग में बच्चे ग्रेजुएट करके यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये यकीनन हमारे डस्का के लिए फ़ख्र की बात है और हमारे लिए भी ये फ़ख्र की बात है। हमें दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला स्पिरिट कॉलेज को दिन दुगनी रात चौगुनी की रहमत अता फरमाए। शुक्रिया। अब बात करेंगे शेरगढ़ की, तो मुसलसल 28वीं बार बिला मुकाबला सदर प्रेस क्लब बनकर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने नेशनल मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया। अहम हलकों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। शेरगढ़ से अब्बास सोनू की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 28वीं बार बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर नए साल के पहले इजलास की सदारत करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने दीगर ओहदेदारान के चुनाव के लिए मेंबरान से मशावरत की, जिसका ऐलान 1 फरवरी को मुनक़िदा इजलास में किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने शुरा से गुफ्तगू में कहा कि 28 सालों का बिला मुकाबला सहाफ़ती सदारती एजाज़ नेशनल सतह पर भी रिकॉर्ड है, जो इस बात की गमाजी करता है कि सदर और कैबिनेट एक पेज पर पुरएतमाद है और मोहब्बतें बांटने, दुख सुख साझा करने की वाज़ेह दलील है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर ने कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़त फूलों की सेज पर नहीं है,
बल्कि कांटों का अमली बिस्तर साबित हो रही है। सहाफ़त हुकूमत का चौथा सतून है। शुरा इजलास ने बिला मुकाबला फतह याबी और 28वीं बरस का नेशनल सतह पर रिकॉर्ड कायम करने पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी को मुबारकबाद पेश करते हुए फूलों की मालाएं पहनाई। इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, रवादारी के क़याम के तसलसल को कायम रखने के लिए इज्तिमाई दुआ हाफिज़ मोहम्मद फराज ने करवाई। मोतबिर हलकों से हाजी राव मोहम्मद अजमल खान, साबिक MNA राना मोहम्मद हयात खान, MNA बाबा ज़ियाउद्दीन, साबिक MPA राना मोहम्मद इकबाल, सूबाई वज़ीर कानून राना सिकंदर हयात खान, सूबाई वज़ीर तालीम सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी, सूबाई मिनिस्टर ज़राअत व लाइव स्टॉक चौधरी ज़ियाउल हक कायम मकाम, DPO कसूर राव साद अजमल खान, उम्मीदवार बराए MNA मकसूद अहमद कंबो, सैयद इमरान शाह करमानी, PA2 मिनिस्टर मियाँ अकबर चंदोर, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल मलिक अली जफ़र आवान, साद अली, हसनैन अब्बास समेत अहले अहम हलकों ने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोराबाद से। चौधरी शौकत परवेज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सियन वापडा जोहराबाद डिवीजन मलिक मोहम्मद इमरान असलम ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में मुल्क भर की तरह जोराबाद डिवीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई राय नहीं दी जाएगी। बिजली चोर इस माशरे का नासूर हैं, इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वो अपने दफ्तर में मीडिया से खसूसी बातचीत कर रहे थे। इनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान असलम है। मेरी यहाँ पे पोस्टिंग 16 दिसंबर को एज आ एक्सियन ऑपरेशन जोराबाद हुई है। इससे पहले मैं पोस्टेड था फैसलाबाद में। अब यहाँ पे आके कुछ इश्यूज हैं जो कोशिश है कि हम लोग उसको जिस तरीके से भी है एज अकॉर्डिंग टू रूल्स उसको सॉल्व करें, जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो है स्टीलर्स के खिलाफ। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थेफ्ट हो रही है और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट का लॉस जो है, मेन फोकस उस पे है हमारा। और जो डेड डिफॉल्टर्स हमारे हैं कि जिनके हमने मीटर्स उतार लिए हैं और पिछले 2 साल 1 साल से मीटर कटे हैं और अमाउंट उनकी केस आउटस्टैंड कर रही है, तो हमने अपनी एक रिकवरी कैंपेन चला रखी है और कोशिश है हमारी कि जितनी जल्दी हो सके हम उनसे वो अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिकवर करें। उनको हमने टाइम दिया, अगर एक हफ्ते के अंदर वो जमा नहीं करवाते तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है पुलिस की, रेंजर्स की, ठीक है, और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी मदद लें। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को इंश्योर करें। हमारा मेन मौक़िफ़ जो है वो मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारा साथ दें, लोगों को अवेयरनेस दें स्टीलर्स के खिलाफ, खासकर कि उनको किसी तरीके से किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। जो डेड डिफॉल्टर प्रिमिसेस हैं जिनके हमने मीटर उतारे हुए हैं और अमाउंट आउटस्टैंड कर रही है, वो किसी और सोर्स अल्टरनेट से बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने अपने तमाम एसटीज को भी दे दी है, ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और कोशिश करेंगे कि आप मीडिया भी और हम लोग भी अवाम की जितनी फ्लाह बबूद कर सकते हैं हम लोग करें। शाहिद भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर लाहौर की हदायत पर CM इनिशिएटिव पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए DC ऑफिस की कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, CO म्यूनसिपल कमेटी समेत दीगर ज़िलाई अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इस मौका पर ज़िलाई अफसरान ने CM के स्पेशल इनिशिएटिव और KPI के हवाले से पेशरफ्त बारे डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ को तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम में शहरियों और देहात में सफाई का मयार यकसा है। पब्लिक पार्क्स और दीगर आवामी मुकामात पर सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। नालों की शेड्यूल के मुताबिक बाकायदगी से डीसलिट किया जाए और वासा इनकी मॉनिटरिंग जारी रखे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरों देहातों को साफ़ सुथरा और दिलकश बनाने के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई की जाए और कूड़ा करकट को डंपिंग साइट पर पहुँचाया जाए। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पब्लिक पार्क्स, अस्पतालों, तलीमी अदारों में सफाई सुथराई पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने की हदायत की। 2025 में नारोवाल पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, संगीन मुकदमात में मतरूब 1698 मुजरमान इश्तिहारियों, 899 अदालती इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया। नाजायज़ असला होल्डर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 618 मुकदमा दर्ज किए गए। 9 क्लाशिनकोफ, 58 राइफल, 20 बंदूक, 526 पिस्टल, हज़ारों गोलियां भी बरामद की गईं। मनशियात के 945 मुकदमा दर्ज करके करोड़ों रुपए की मनशियात,
539 किलो चर्स, 26 किलो हेरोइन, 3 किलो आइस दीगर बरामद की। कत्ल के 53 मुकदमात में 49 मुकदमात समेत अंधे कत्ल के 11 मुकदमात में 11 मुकदमात को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। डाकू चोरों के 57 गैंग्स 135 कारिंदों समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2025 साल में मजमूई तौर पर 21 करोड़ 53 लाख 58,994 रुपए का मसरूका सामान बरामद किया। रिपोर्ट नुमाइंदा अली उस्मान, 99 न्यूज़ नारोवाल। साल 2025 डिस्ट्रिक्ट पुलिस नारोवाल की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इस साल में तकरीबन 40% डकैती, राहज़नी और मोटरसाइकिल चोरी में कमी वाक़या हुई। 32% शरह बरामदगी में इजाफा हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस नारोवाल ने तमाम लोगों को मुकम्मल तौर पर उनके मजहबी और दीगर त्योहारों पर सिक्योरिटी फराहम की। दरबार करतारपुर साहिब में आने वाले ज़ायरीन को, चाहे वो इस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों या बैरून मुल्क, मिसाली तौर पर सिक्योरिटी के अमली इक़दाम किए। पुलिस ने अवाम की सहूलत की मद्देनज़र रखते हुए शकरगढ़ तहसील में खिदमत मरकज़ जो है वो कायम किया, और इसी तरह नारोवाल शहर के अंदर लाइसेंसिंग सेंटर को मुकम्मल तौर पर रेनोवेट किया गया। लोगों की सहूलत के लिए सिमुलेटर का मुतारफ़ करवाया गया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस नारोवाल ने अपने जवानों और अफसरान के लिए बेहतरीन सहूलतों की फराहमी को भी यकीनी बनाया और उनको हर तरीके से मदद फराहम की। इंशाअल्लाह ताला 2026 का साल भी इस यकीन के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस नारोवाल लोगों की सिक्योरिटी और उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दाम उठाएगी। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोहराबाद से। चौधरी शौकत परवेज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ अस्पताल जोहराबाद डॉक्टर अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में पंजाब के अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिला में DHQ अस्पताल जोहराबाद में तबी सहूलियात की फराहमी के लिए शबाना रोज़ कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त एमरजेंसी में चाहे दिन हो या रात, हर वक्त तबी सहूलियात बिल्कुल फरीक फराहम की जा रही हैं। बहुत जल्द OPDs और दीगर शोबाजात में वाज़ेह मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। वो अपने दफ्तर में मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इनका मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िले इंतज़ामिया खुशाब और हुकूमत पंजाब के VN के मुताबिक हर घर में हर बंदे को, हर अफराद को बेहतरीन तिबी सहूलियात के लिए हम कोशां हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने डिप्टी कमिश्नर खुशाब के VN के मुताबिक और उनके तावन से हमने इमरजेंसी फ्री कर दी है। इमरजेंसी में हमने कोशिश की है कि हर मरीज़ को हम दवाई दें, मेडिसन दें, साथ में OPD भी। उसके साथ साथ हमने चिल्ड्रेन ब्लॉक एक अलहदा बनाया है, जिसमें मेरी आपके चैनल के तावन से शहरियों से गुजारिश है कि वहाँ पे अपने बच्चों का चेकअप करवाएं। मॉर्निंग शिफ्ट भी होगी और इवनिंग शिफ्ट में भी हमारे पास माहर डॉक्टर मौजूद होंगे, तो अपने बच्चों का वहाँ से चेकअप करवाएं। और हुकूमत पंजाब की जो VN के मुताबिक ये सेहत की सहूलियात हैं, इससे फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। अब बात करेंगे उकाड़ा से। थाना रावी के नवाह जोया पुल के करीब पुलिस मुकाबला। उकाड़ा से ब्यूरो चीफ फातिमा मुगल के मुताबिक पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू की शिनाख्त मुमताज़ के नाम से हुई। मुमताज़ सिरका नकब जनी जैसे 24 संगीन जराइम में मुलविस निकला। डाकू के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असला बरामद। 2 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनी। इतला मिलते ही SHO थाना रावी जफर महार और इनकी टीम ने डाकुओं का बहादुरी से ताक़ुब किया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हफाज से खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजा में एक डाकू अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। साथी डाकू की तलाश जारी है। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। नारोवाल की सियासी और समाजी शख्सियत सैयद हसनैन रज़ा शमसी असला वाले और सदर अंजमन गुलामान अहले बैत के बेटे सैयद ज़रगाम अली के छोटे भाई सैयद मोहतशम अली शमसी रिश्ता अज़वाज से मुंसलिक हो गए। सैयद मोहतशम अली शमसी की शानदार दावत वलीमा की तकरीब अल नसर मार्की में मुनक़िद की गई, जिसने पाक आर्मी कर्नल रिटायर्ड सैयद सलीम सज्जाद, पाक रेंजर के विंग कमांडर कर्नल शफीक, आस्ताना आलिया बरवाल
बरदार शरीफ के पीर सैयद अली अब्बास नकवी, पीर सैयद फवाद रज़ा काज़मी ऑफ बदोमली, पीर सैयद नसीम अब्बास ऑफ जफरवाल, नारवाल प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हाजी अमजद अली, पीर सैयद ज़िशान हैदर बुखारी ऑफ बदोचेदा, हाफिज़ इमरान भट्टी, सदर अंजमन सराफा ताजरान नारवाल समेत ज़िला भर से समाजी और सियासी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। दावत वलीमा में आने वाले मेहमानों ने सैयद मोहतशम अली शमसी को ज़िंदगी का नया सफ़र के आगाज़ पर मुबारकबाद देते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि ज़िला नारवाल की हर दिल अजीज़ शख्सियत और सदर अंजमन गुलामान अहले बैत ज़िला नारवाल सैयद हसनैन रज़ा शमसी के छोटे बेटे सैयद मोहतशम अली शमसी और सैयद ज़रगाम अली शमसी के छोटे भाई हैं। नुमाइंदा अली उस्मान, 99 न्यूज़ नारवाल। अब बात करेंगे कसूर की, जहां पर पतंगे बनाने वाला कारखाना पकड़ा गया। हज़ारों की तादाद में पतंगे और मटीरियल बरामद कर लिया गया। थाना सदर कसूर पुलिस के SHO हैदर अली की सरबराही में कार्रवाई की गई। पीरवाला रोड से पतंगे बनाने वाला कारखाना पकड़ा गया। हज़ारों की तादाद में पतंगे और पतंगे बनाने वाला मटेरियल भी बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुलज़म वसीम वल्द नियामत सकना पीरवाला रोड को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर कसूर पुलिस ने काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। DSP सदर अफजल डोगर की ज़ेर निगरानी पतंगे और डोर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद जारी हैं। अरुणाबाद THQ हस्पताल की इंतजामिया का अनोखा कारनामा सामने आ गया। अरसदरा से हस्पताल में मौजूद साइकिल स्टैंड और टक चाप वाले को हस्पताल इंतजामिया की जानिब से सरकारी फ्री बिजली से नवाजा जा रहा है, जिस पर प्राइवेट दुकानदार साहब अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहा है। 5000 वाट का हीटर जो कि हर वक्त चलता रहता है, जिस पर बड़े बड़े कमर्शियल इस्तेमाल वाले बर्तन में दूध गर्म किया जा रहा है। डीप फ्रीज़र में 24 घंटे चलता है और इसके साथ साथ स्टैंड वाला भी बहती गंगा में हाथ धोने लगा, वो भी रात के वक्त। बड़ा हीटर 5000 वाट सरकारी बिजली पर चला रहा है। जब मीडिया नुमाइंदगान ने दुकानदार से मालूमात ली तो इसने कहा कि MS से बात कर लें, ये सब इनकी मर्ज़ी से हो रहा है। अहले इलाका का कहना है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस सरकारी खर्चे पर अयाशियाँ उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शेखुपुरा शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के मुताबिक जुल्म की इंतहा बाई ही बाई का कातिल बन गया। शेखुपुरा बाईपास पर वाक़या अहमद रेजिडेंशिया के नाम से बनने वाली मुबैना हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा मकरू खेल खेला गया जिसने खूनी रिश्तों को भी शर्मा दिया। सगे भाइयों ने धोखा, फ्रॉड और जालसाजी के जरिए अपने ही छोटे भाई की ज़मीन और घर पर नाजायज़ कब्जा कर लिया। जब मुतासरा छोटे भाई ने अपनी जायज़ ज़मीन और इसके पैसों का मुतालबा किया तो ताकत में नशे बदमस्त भाइयों ने इसे अगवा करवाया और जान से मारने की कानूनी कोशिश की। मौजूदा तौर पर जान बचाने के बाद मजलूम भाई को इंसाफ देने की बजाय उल्टा इसी पर झूठी और मन गढ़त FIR दर्ज करवाया। मैं रेहान मलिक शेखपुरा का रिहायशी हाँ। मेरे भरावां ने धोखे फ्राड नाल मेरी जमीन का नजायज़ कब्जा किया है। बाईपास शेखपुरा रोड VIP टाउन के ओपोजिट अहमद रेजिडेंशिया के नाम की कलोनी है, उत्थे मेरी जमीन है। 22 दिसंबर 2024 इन्होंने मैनू घर बुलाया। मैं घर गया, तकरीबन 3 बजे का टाइम सी। इन्होंने घर के बाहर ही अपने साथी बुला के मैनू अगवा किया। नाम लोग जगह पर जा के पूरी तरह तशद्दुद किया और तशद्दुद के दौरान ही जबरदस्ती मेरे को कुछ कागजात के साइन के अंगूठे करवाए। उस तो बाद मैनू जान तो मारन दी धमकियां दित्तियां। इन्हां लोगों के ज़िशान मलिक, सलमान मलिक, अमजद अली इन्हां दा हमसाया है और इन्हां दा दोस्त है इसाकब शरीफ, यह शामिल ने। इसाकब शरीफ पेट्रोलिंग पुलिस शेखपुरा के कांस्टेबल भी है। इस तो बाद इन्होंने मेरे पिछे मैनू हरासा करने लई मजीद बंदे लाए और मैनू जान तो मारन दी धमकियां दित्तियां और धमकी दी कि तेरे ते असीं झूठा पर्चा करवाया, तेनों असीं इश्तिहारी करवा के CCD पुलिस ने असीं तेनों मरवा देना है। मेरे को इन्दियां कुछ तस्वीर ने मेडिकल ले और इस झूठे पर्चे की जिहड़ा इन्होंने झूठा पर्चा मेरे से करवाया उनकी FIR मैं इस वीडियो के नाल शेयर करांगा। मेरी जान नूं खतरा है। कल अगर मेरे नाल कुछ होंदा है तो इहदे ज़िशान मलिक, सलमान मलिक, अमजद अली, साकब शरीफ और इन्हां दे नाल कुछ बासर लोग ने यह जिम्मेदार होंगे। मेरी जनाब CM मरियम नवाज साहबा तो अपील है कि मैनू जान का तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए और जो ज़्यादती नाइंसाफ़ी इन्होंने मेरे नाल की है मैनू इंसाफ दिता जाए और इन्हां दे खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए।
महकमा सिविल डिफेंस नारोवाल की बम डिस्पोजल टीम की बड़ी कार्रवाई, इंडियन साख्त का रॉकेट नाकारा बना दिया गया। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर निगरानी महकमा सिविल डिफेंस मसरूफ़ अमल है। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर फरहाना अजीज़ की सरबराही में महकमा सिविल डिफेंस की बम डिस्पोजल टीम ने करतारपुर के करीब जस्टर रेंजर्स चेक पोस्ट के मुकाम पर 1 नंबर रॉकेट इंडियन मेड वजन 7 किलोग्राम अपने कब्जे में लेकर नाकारा बना दिया। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर नारोवाल का इस हवाले से कहना है कि महकमा सिविल डिफेंस आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। रिपोर्ट नुमाइंदा अली उस्मान, 99 न्यूज़ नारोवाल। सांगड़ हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब के फर्जंद फंक्शनल मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर सैयद मोहम्मद राशिद शाह राशिदी का सांगड़ का दौरा, शानदार इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट करें इशफाक सुलेमान। हुरू के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा के फर्जंद पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के सीनियर नायब सदर मेंबर सूबाई असम्बली सैयद मोहम्मद राशिद शाह राशिदी एक रोज़ा दौरे पर डॉक्टर मोहम्मद आशम खासकली की दावत पर झोल तशरीफ़ फरमा हुए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बड़े जुलूस की शक्ल में साबिक MPA चेयरमैन फैसला कमेटी सईद खान नज़ामानी की दावत पर सांगड़ पहुंचे, जहां उन्होंने सांगड़ के मौजूद सियासी समाजी शख्सियत से मुलाकात के बाद अवार्ड में जमात के इज्तिमा से खिताब किया। इनके दौरे से जमात और फंक्शन लीग मतहद हुई। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी एक बार फिर मतहद होने का मौका दिया। अगर इसी तरह से दोनों तरफ से सियासी दौरे होते रहे तो कारकुनों में जोश और जज्बा बेदार होगा और मुकाबले का रुझान पैदा होगा और मस्बत सियासत का माहौल बेदार होगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलैरी, सांगड़। डस्का सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान रफ़ीक ने डस्का में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लेने के लिए कॉलेज रोड और जाम के रोड का दौरा किया और ज़ेर तामीर सड़कों, गलियों, सीवरेज और टाइल वर्क के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। वज़ीर जानते हैं सैयद शहबाज नकवी की ये रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान रफ़ीक के डस्का के दौरा के मौका पर सदर PP 51 मोहम्मद अजीम भट्ट, सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद अफसल मनशा, पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद दाऊद शाह बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर डस्का सादिया जाफर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी और दीगर मुतलका हकाम इनके हमरा थे। शहरी ने डस्का में जारी तरक्याती कामों और जाम के रोड पर दिलकश डिज़ाइन की टफ टाइल लगाने पर वज़ीर बल्दियात का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर बल्दियात ने कहा कि डस्का में सड़कों और सीवरेज के ऐसे पायदार निज़ाम की मनसूबाबंदी की जा रही है कि इस हवाले से मसाइल दोबारा ना पैदा हों और आवाम की हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जा सकें।